Assessment of genetic diversity in crop plants. जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है कि जो जीन्स में वेरिएशंस पाई जाती हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म की, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है, तो उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन. क्रॉप प्लांट एवोल्यूशन, either natural or human directed, is primarily based on existing genetic diversity in the population. Diversity can be described as the degree of differentiation between or within species. Existing intra and interspecific differences are at the base of all crop improvement programs. If all the individuals within the species would have been similar, then possibly there could not have been any scope for improvement in plant performances for different traits. वो कह रहे हैं कि जो क्रॉप प्लांट एवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा वास्ट, उनकी जो वैरायटीज़ हैं, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं. वो कह रहे हैं कि अगर इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, अगर जीन्स में वेरिएशंस नहीं होंगी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट के कोई चांसेस नहीं होते. ठीक है, कि उनकी जो प्लांट की परफॉर्मेंसेस है वो इम्प्रूव होंगी या फिर उनकी जो ट्रेट्स हैं उनमें कोई इम्प्रूवमेंट आएगी. अगर उनमें चेंजेस ही नहीं आएंगे, अगर उनमें वेरिएशंस ही नहीं आएंगी, तो उनकी जो इम्प्रूवमेंट है वो भी नहीं हो पाएगी. Since the beginning of systematic plant breeding, natural variability and divergence between crops have been extensively identified and used in improvement of crop species. However, with the progress of time, natural variability got depleted due to lopsided breeding practices focusing on improvement of only few traits like yield and its component traits, frequent use of few selected genotypes as parents in varietal development program, and introduction of few outstanding lines to many countries, thereby leading to increased genetic similarity between modern crop cultivars. वो कहते हैं कि जो विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, नेचुरल वेरिएबिलिटी जो है वो डिप्लीट होती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है. क्यों? क्योंकि जो ब्रीडर्स हैं उन वो जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, जो क्रॉप्स की ब्रीडिंग करवा रहे हैं, उनमें कोई इम्प्रूवमेंट की तरफ उन्होंने फोकस नहीं करा. सेकंड, जो सेलेक्टेड जीनोटाइप्स हैं उन्हीं को बार बार यूज़ करी जा रहे हैं, उनमें चेंजेस नहीं ला रहे, कोई नई वैरायटी को यूज़ करके नहीं देख रहे. ठीक है, जिसकी वजह से उनमें इतने ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आई. ठीक है, थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो इंट्रोडक्शन करवाते हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक सिमिलरिटी होती है, जिसकी वजह से जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो जीन डाइवर्सिटी है वो शो नहीं हो रही. ठीक है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही प्लांट्स में. Reduced genetic variability and diversity among crop plant species has raised serious concern among agricultural workers. With reduced genetic diversity, further improvement in crop varieties will be an arduous task. मतलब जो अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है अगर वो कम होगी, ठीक है, जीन्स में वेरिएशंस कम आएंगी, तो जो इम्प्रूवमेंट है, अगर हम किसी क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उनका जो इम्प्रूवमेंट का टास्क है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. Breaking yield barriers will become difficult and plant breeders will be unable to meet the requirements arising out of ever increasing demand on account of exploding population. Genetic diversity becomes more important in context of climatic change
and associated for unforeseen events, as it may serve as the reservoir of many novel traits, conferring tolerance to different biotic and abiotic stresses. वो कह रहे हैं कि अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी हम मेन मुद्दा लेके चलें अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी को, तो उससे क्या होगा, जो नोवल ट्रेट्स हैं, नई जो वैरायटीज़ हैं वो अकाउंट में आएंगी, जिसमें टॉलरेंस पावर होंगी कि वो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस को टॉलरेट कर सकें. Genetic diversity is the underlying cause of many important agriculturally important phenomena like heterosis and transgressive segregation. Diverse lines are needed for defect correction of commercial varieties and development of novel varieties. Hence, identification of diverse lines, creation of diversity, and its subsequent utilization are the major goals of any crop improvement programs. In this context, knowledge on all different methods of diversity analysis, their measurement, and the softwares for carrying statistical analysis becomes imperative in order to utilize them prudently. Many reviews have been written focusing on vital issues like changes in genetic diversity under plant breeding, genetic vulnerability of modern crop cultivars, conservation and utilization of genetic resources, assessment of genetic diversity using molecular markers, and measurement of genetic diversity using statistical tools. In the present review, we can study about all of these methods. First of all, what is concept of diversity? Diversity का जो concept है वो क्या है? जो जीन्स में वेरिएशंस आ रही हैं, उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, डीएनए और आरएनए है, उनमें कैसे वेरिएशंस आ रही हैं, उनकी जो हायरार्की है किस तरह की वेरिएशंस होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. Ecological diversity means diversity between living entities in an ecosystem. इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में जो लिविंग बीइंग्स रह रहे हैं, उनकी क्या इंटरेक्शंस है, कौन कौन सी इंटरेक्शंस वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स के साथ शो कर रहे हैं. दैट ऑल कम्स अंडर इकोसिस्टम. ठीक है, जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है एक पर्टिकुलर एरिया में, दैट ऑल फॉर्म्स एन इकोसिस्टम. तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आएगी. अगर हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो वेरिएशंस, जो अलग अलग एरियाज़ की जो इकोसिस्टम की वेरिएशंस होती हैं. कुछ प्लेनर एरियाज़ होते हैं, ग्रासलैंड्स जिसको हम बोल देते हैं, डेजर्टेड एरियाज़ होते हैं, हिली एरियाज़ होते हैं. तो ये सारे अलग अलग इकोसिस्टम बनाते हैं. सेकेंड है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी बिटवीन लिविंग एंटिटीज़ इन अ कम्युनिटी. जो एक कम्युनिटी में लिविंग एंटिटीज़ रह रही हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उनमें कितनी वेरिएशंस है, कितने तरह की स्पीशीज़ जो हैं एक स्पेसिफिक एरिया में सर्वाइव कर रही हैं. दैट ऑल कम्स अंडर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. थर्ड वन इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी. अब हर एक इंडिविजुअल है, अगर हम बात करें वन ह्यूमन बीइंग, जो एक ह्यूमन बीइंग है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है. तो सेम इन केस ऑफ प्लांट्स, उनके जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो वेरी करता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर. The fourth one is genomic diversity. Diversity at several gene loci across the genome. अब जीनोम में एक जीनोम सीक्वेंस होता है, डीएनए सीक्वेंस या फिर आरएनए सीक्वेंस, उनमें कौन कौन सी वेरिएशंस है, कौन कौन सी जीन्स जो हैं, जीन की पोजीशंस कहाँ कहाँ पे है. दैट ऑल कम्स अंडर जीनोमिक डाइवर्सिटी. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस?
अब अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, अगर प्लांट्स जो हैं अलग अलग वैरायटीज़ के अलग अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर को कंटेन करेंगे, तो उनकी जो स्टडी है उसको करने में भी हेल्प होगी। जो जो वेरिएशंस आई हैं उनके बेसिस पे हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये असेस कर पाएंगे कि कौन सी वेरिएशंस की वजह से कौन से रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी में ये सब आएगा। अब कुछ बहुत सारी ऐसे प्लांट क्रॉप्स हैं या बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की जो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है फॉर अगेंस्ट बायोटिक स्ट्रेसेस एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो जैसे जैसे उनमें उनकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, जैसे जैसे उनमें वेरिएशंस आ रही हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उनकी जो टॉलरेंस की एबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डाइवर्सिटी एनालिसिस। अब डाइवर्सिटी को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? डाइवर्सिटी एनालिसिस कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन. Initially, morphological markers were used for diversity analysis and are still in use. वो कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी को अगर हमने एनालाइज करना हो कि कौन कौन सी वेरिएशंस आ रही हैं, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है मॉर्फोलॉजिकल. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स कौन से होते हैं? जो हम कोई भी प्लांट की फिज़िकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उनको जज कर सकें, एनालाइज कर सकें. ठीक है, डाइवर्सिटी एनालिसिस कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन. इनिशियली morphological markers were used for diversity analysis and are still in use. These were naturally occurring variants of a particular plant species. Later, cytological and biochemical differences occurring in the genotypes of a species started to be used in genetic diversity assessment. With the advent of genomic tools, molecular markers became the method of choice for genetic diversity assessment. Morphological markers. अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है ना, वैसे वैसे नए जीनोमिक टूल्स आ गए हैं जिससे कि हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी को असेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं. ठीक है, तो उनमें फर्स्ट मार्कर्स हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स. These analyses are carried out by raising germplasm lines, pure lines, improved varieties, etc. in a particular experimental design. This involves morphological characterization of different entries grown in the field, as the morphological characteristics are the strongest determinants of the agronomic value and taxonomic classification of plants. Morphological evaluations are direct, inexpensive, easy, and do not require expensive technology. However, the requirements of large tracts of land and human laborers over a period of time make it expensive. They suffer from the constraints of environmental sensitivity and subjective characterization when compared to other methods. They are mostly dominant or recessive, have some biological effect, and some morphological variants cannot survive. Different sets of morphological traits are taken into consideration for different group of crop plants. वो कह रहे हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं उनके बेसिस पर हम ईज़िली जज कर सकते हैं कि जो प्लांट क्रॉप को हमने ग्रो करवाया है उनमें कौन कौन सी वेरिएशंस आई हैं. और ये जो मेथड है ये डायरेक्ट इवैल्यूएशन मेथड है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, और इनके बेसिस पर हम क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम इसको जज कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं,
उनके करेक्टर्स होते हैं ग्रोथ हैबिट, कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर का कलर कैसा है, लीफ शेप, पॉड एंड सीड शेप, रूट नोड्यूल ट्रेट्स। अगर हम इनमें पी प्लांट्स के एग्जांपल लें तो हमने अगर उनमें वेरिएशंस देखनी हो कि उनकी जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं उनमें कौन कौन सी वेरिएशंस आई हैं, तो हम उनके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स को जज कर सकते हैं। उनकी जो ग्रोथ हैबिट है, कितनी हाइट तक ग्रो कर रहे हैं। जो हमारा पेरेंट प्लांट था वो कितनी हाइट का था, और जो हमने उसमें वेरिएशंस ला के उनको एक्स्ट्रा ग्रोथ मीडिया प्रोवाइड करके अगर हमने उसी सेम सीड को ग्रो करवाया है सेम कंडीशंस में, तो उसमें क्या इफ़ेक्ट आए हैं, क्या वेरिएशंस आए हैं। ठीक है। सीरियल क्रॉप्स स्टेम पिगमेंटेशन के बेसिस पे, पैनिकल लेंथ, ग्रेन कलर, ग्रेन शेप। ठीक है। जो फाइबर क्रॉप्स होती हैं उनकी प्लांट हाइट देखी जाती है, बेसल डायमीटर देखा जाता है, फाइबर कंटेंट, लिग्निन एंड हेमीसेल्यूलोज कंटेंट। वेजिटेबल क्रॉप्स की देखी जाती हैं ग्रोथ हैबिट्स की, कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं वो। हाइपोकोटाइल कलर, कॉटिलेडन्स का जो कलर है वो कैसा है, स्टेम एंड लीफ प्यूबिसेंस। फॉरेज क्रॉप, plant height, lignin and hemicellulose content. Mustard, Siliqua length, Siliqua beak length, Siliqua angle with main raceme, oil content. Medicinal crops, herbage yield, essential oil yield. ये सारे जो करेक्टर्स हैं इनके बेसिस पे हम मॉर्फोलॉजिकली इवेल्यूएट कर सकते हैं जेनेटिक वेरिएशंस को। बेसिकली अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल इवेल्यूएशंस आर बेस्ड ऑन द फिज़िकल स्ट्रक्चर। तो हम किसी भी प्लांट के फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर हम उसको जज कर सकते हैं कि उनमें कितनी वेरिएशंस आई हैं आफ्टर अ जनरेशन। एक जनरेशन के बाद जब हमने सेम प्लांट को ग्रो करवाया है तो उसमें कौन कौन सी वेरिएशंस आई हैं उनको हम जज कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। सेकेंड इज साइटोलॉजिकल मार्कर्स। साइटोलॉजिकल मार्कर्स इन्वॉल्व स्टडी ऑफ साइटोलॉजिकल फीचर्स लाइक क्रोमोसोम साइज, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम्स, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, आर्म रेशियो। अब इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट साइटोलॉजिकल फीचर्स हैव बीन अप्लाइड to assess genetic diversity within and between species in maize, in potato, in lentil, radish, etc. However, these have limited applications in genetic diversity analysis on account of their limited number and low resolution. अब वो कह रहे हैं जो साइटोलॉजिकल मार्कर्स हैं उनमें हम क्रोमोसोम्स के ऊपर स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम साइज, नंबर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये सारा कुछ हम देखते हैं। डीएनए कंटेंट कितना है, इन सब के बेसिस पे हम असेस करते हैं जेनेटिक वेरिएशंस को, वेरिएबिलिटी को। थर्ड इज़ बायोकेमिकल मार्कर्स। इट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स और देयर वेरिएंट्स इनटू स्पेसिफिक बाइंडिंग पैटर्न्स। बायोकेमिकल मार्कर्स में हम क्या कर सकते हैं, रैपिड मेथड है ये असेसिंग ऑफ डाइवर्सिटी एंड रिक्वायर्स स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। हमने क्या करा, एक प्लांट में से, एक प्लांट के किसी भी पार्ट में से हमने उसका टिश्यू जो है उसको आइसोलेट कर लिया, उसमें से हम उनके प्रोटीन्स को सेपरेट करवा के उनके बेंडिंग पैटर्न्स, जो बैंड्स हमें मिलते हैं विद द प्रोसेस ऑफ पीसीआर टेक्निक, जो पीसीआर रन करवा के जो हमें बैंड्स मिलते हैं उससे हम पता लगा सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि जो वेरिएशंस हैं वो कितनी आई हैं। ठीक है। फोर्थ इज मॉलिक्यूलर मार्कर्स। मॉलिक्यूलर मार्कर्स आर व्हाट, दीज आर डीएनए और आरएनए मार्कर्स। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी एक पर्टिकुलर जीनोम सीक्वेंस होता है उसके ऊपर हम ऐसा एंजाइम इंसर्ट करवाते हैं जो एक पर्टिकुलर जीन लोकेशन के ऊपर जाके बाइंड हो जाता है। So these are also PCR based
टेक्निक्स, इसमें हाइब्रिडाइजेशन करवा के देखते हैं कि कौन कौन सी जीन्स में वेरिएशंस आई हैं। ठीक है, तो ये थे आपके जेनेटिक डाइवर्सिटी के मेथड्स हम कैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी को, वेरिएबिलिटी को कैसे जज कर सकते हैं, जीन्स में वेरिएशंस को कैसे असेस कर सकते हैं। दीज आर ऑल द मेथड्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी असेसमेंट। क्लियर है?